اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک بھر میں آٹے کا بحران کم نہ ہو سکا، کہیں آٹا دستیاب نہیں تو کہیں مہنگے داموں مل رہا ہے۔ مختلف شہروں میں آٹے کے لیے شہری قطاروں میں لگنے پر مجبور ہیں، جبکہ بعض شہروں میں مرد اور خواتین انتظامیہ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ ملک بھر میں آٹے کا بحران، عوام پریشان، کئی شہروں میں آٹے کے لیے لمبی لمبی قطاریں، شہری آٹے کے لیے دن بھر خوار ہونے لگے۔ جنوبی پنجاب میں آٹے کا بحران تھم نہ سکا، ملتان گھنٹہ گھر چوک پر شہریوں کی آٹے کے حصول کے لیے لمبی لمبی قطاریں۔ فیصل آباد میں آٹے کی قلت برقرار، مارکیٹ میں 15 کلو آٹے کا تھیلا 2300 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ چونیا میں سرکاری سیل پوائنٹ پر چوکر والا آٹا فروخت ہونے لگا۔ غیر معیاری آٹے سے بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ نصیر آباد میں آٹا مزید مہنگا ہو گیا، شہریوں کے لیے ایک وقت کی روٹی کا حصول بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے آٹے کے بحران پر جلد قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت کو خیال نہ آیا، لیکن پشاور کا ایک شہری غریبوں اور مستحق کا سہارا بن گیا۔ آٹے کی قیمتوں میں اضافے سے مزدوروں اور مستحق افراد کی مشکلات کے پیش نظر اپنی مدد آپ کے تحت محمد عمران نامی شہری نے چارسدہ روڈ پر آٹے کے سینکڑوں تھیلے مفت تقسیم کر دیے۔ جمیل خان کی رپورٹ دیکھیے۔ مہنگائی کے ستائے مزدور و مستحق افراد کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے پشاور کا رہائشی محمد عمران میدان میں آ گیا۔ اپنی مدد آپ کے تحت 100 سے زائد افراد میں مفت آٹا تقسیم کر دیا۔ لوگوں نے بھی محمد عمران کے اقدام کو سراہا، کہتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں مفت آٹا ملنا کسی نعمت سے کم نہیں۔ ہمارے اس راشن آج کے آٹے کی تقسیم سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ان جو مستحق فیملی ہے تقریباً آج ہم 100 افراد میں یہ آٹے کے تھیلے تقسیم کریں گے، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ چند روز تو ان بچوں کی بھوک مٹ جائے اور ان کے گھر میں کچھ سکون ہو سکے۔ غریبوں کے لیے بہت اچھی بات ہے، اور بھی ایسے لوگوں کو بکار ہے جو دے سکتے ہیں زکوٰۃ خیرات، انہیں بھی چاہیے کہ یہ صدقہ جاری رکھیں۔ محمد عمران نے کہا حکومت اور دیگر صاحب استطاعت افراد تعاون کرے تو دیگر علاقوں میں بھی یہ عمل شروع کریں گے۔ کیمرہ مین عاقب جاوید کے ساتھ جمیل خان، نیو نیوز، پشاور۔ مہنگائی کے ہاتھوں ستائے شہریوں کو ایک اور جھٹکا، سریے کی قیمت میں فی ٹن 45,000 روپے اضافہ کر دیا۔ قیمتوں میں اضافے کے باعث تعمیراتی کام متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی سے متعلق مزید جانتے ہیں ناصر شیخ سے۔ ناصر بتائیے گا۔ جی، پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے لوگوں کا جینا آرام کر دیا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ایک سریے کی دکان پہ، جہاں پر جو ہے وہ ایک ٹن کے اوپر 35,000 روپے جو ہے وہ 15 سے 20 دن کے درمیان بڑھے ہیں، جس کی وجہ سے تمام تر تعمیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور سریے کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے اب تعمیراتی کام بھی رک گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک صاحب۔ جی بتائیے گا، یہ سریے کی جو قیمتیں بڑھی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر، امپورٹ نہ کھلنے کی وجہ سے، ایلسیاں جو بینک میں ہیں اس کی وجہ سے یہ شارٹیج شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت کیا قیمت ہے؟ ابھی 2,45,000 امریلی ہے اور لوکل سریا 220 روپے۔ اس سے پہلے کتنا تھا؟ 190 اور 210۔ ان کا کہنا ہے کہ چند روز کے اندر جو ہے وہ 35,000 روپے فی ٹن سریے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ تعمیراتی کام ٹھپ ہو گیا ہے۔ مزدور بے روزگار ہو گئے، مستری بے روزگار ہو گئے، جگہ جگہ جو ہے پیڑھیوں میں مزدور اور مستری بیٹھے کام کا انتظار کر رہے ہیں۔ بے روزگاری میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ جی ناصر شیخ، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہی کے دھانے پر، صنعت کار پریشان، کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں خام مال مہنگا ملنے کے ساتھ کروڑوں روپے کی مشینری کلیئر نہ ہونے سمیت متعدد مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات فیصل آباد سے بیورو چیف شاہد علی کی رپورٹ میں جانیے۔ ملک کی معاشیت ڈوبنے کا اندیشہ، 70% صنعتوں کو تالے لگ گئے۔ صورتحال یہی رہی تو کاروبار کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ صنعت کاروں نے حکومتی نمائندوں کو خبردار کر دیا۔ چیمبر آف کامرس میں صنعت کاروں نے ملک کی معاشیت اور ڈوبتے کاروبار کو بچانے کے لیے سر جوڑ لیے۔ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے کہ را مٹیریل کی اور دوسری چیزوں کی ایلسیاں تک نہیں کھل رہی۔ جو مال ہمارے پورٹ پہ آئے پڑے ہیں وہ کلیئر نہیں ہو رہا ہے، بینک جو ہیں وہ ڈالر نہیں دے رہے۔ صنعت کار کہتے ہیں کہ خام مال مہنگا مل رہا ہے، جس کے باعث لاگت زیادہ اور آمدن کم ہو گئی ہے۔ یہی نہیں، FBR کے نوٹسز نے بھی صنعت کاروں کی کمر توڑ دی ہے، جبکہ کروڑوں روپے کی مشینری بھی پورٹ پر پڑی ناکارہ ہو رہی ہے۔ غیر ملکی آرڈرز کینسل ہونے لگے۔ صنعت کار کہتے ہیں کہ کاروبار چلانے کے لیے حکومت سازگار ماحول فراہم کرے۔ پالیسی بنائیں کوئی اچھی سی کہ جس میں ایک فرینڈلی ماحول پیدا کیا جائے، جس میں تاجر بہترین طریقے سے اچھے ماحول میں وہ کام کر سکے۔ اور ہم جو انویسٹمنٹ اپنی لگا کے بیٹھے ہیں وہ 1.5 گنا بڑھ چکی ہے،
कुछ डैमेजेस की शक्ल में बढ़ गई है। ताजर और सनतकार कहते हैं कि अगर टैक्स अदा करने के बावजूद भी यही सूरत हाल रही तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो सकती है। नतीजे में हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, जिसके बायस मुल्क की मसाइल में भी इजाफा होगा। कैमरामैन मोहम्मद इब्रार के साथ शाहिद अली, न्यूज़ फैसलाबाद। पेशावर में गैस लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। सूबाई दारुल हुकूमत में CNG स्टेशंस बंद, लेकिन कम प्रेशर और गैस लोड शेडिंग का मसला ताहाल हल तलब है, जिसकी वजह से घरेलू अमूर ठप होकर रह गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ शाहिद खान से। शाहिद खान, बताइएगा इससे मुतल्लिक। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के जो बेशतर अजला है यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग की वजह से सारिफिन को बिला ताअत्तुल गैस की फराहमी के लिए CNG स्टेशन जो है वो बंद कर दिए गए हैं। अभी तक वो बंद है, लेकिन जो सारिफिन का मसला है बेसिक बिला ताअत्तुल गैस की फराहमी, वो अभी तक हल नहीं किया जा सका। और अभी भी पेशावर की अगर हम बात करें तो पेशावर के शहरी इलाकों में अभी भी ऐसे इलाके मौजूद हैं कि जहाँ पर गैस लोड शेडिंग अपनी उरूज पे है, और बाज़ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया तो कम हो गया है, लेकिन जो प्रेशर है वो प्रेशर ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से उस गैस पे खाना पकाना ना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि शहरी जो है अभी तो बेशतर शहरी ऐसे है कि उन्होंने शिकायत करना भी छोड़ दिया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं किया जा सका। हर हुकूमत जो है वो आती है, वादे करती है। तकरीबन 3-4 साल हो गए कि पेशावर को गैस के प्रेशर का मसला है, लेकिन अभी तक वो है वो हल नहीं हो सका। जो हुकूमत है, जो सियासी लोग हैं, अपनी सियासत कर रहे हैं, और जो अवामी मसाइल है उससे मुकम्मल तौर पर बेखबर है या लाइलम ख़ुद को ज़ाहिर करते हैं। जी शाहिद खान, बहुत शुक्रिया आपका। शहर औलिया कचरा कुंडी में तब्दील होने लगा। शहर भर में कूड़ेदान न होने की वजह से शहरी कूड़ा सरकारी इमारत और पानी की टैंकों के साथ फेंक देते हैं, जबकि मुर्दा जानवरों को भी उसी जगह पर फेंक दिया जाता है। मगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला कई दिनों तक कूड़ा उठाने के लिए नहीं आता। इसी से मुतल्लिक मज़ीद बात करते हैं। इमरान अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान अरशद, बताइएगा इससे मुतल्लिक। इस वक्त मैं मुल्तान के पौश इलाके के अंदर मौजूद हूँ। सादात कॉलोनी का ये इलाका है, और यहाँ पे इलाका मकीनों को ये इस मुश्किल का सामना है कि जो कंटेनर है कूड़ा क्रिकेट फेंकने के लिए वो यहाँ पे दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे पहले कभी कंटेनर हुआ करता था, लेकिन उस कंटेनर को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से उठा लिया गया, और उसके बाद यहाँ पे दोबारा कभी रखने की जहमत ही गवारा नहीं की, जिसकी वजह से मुल्तान के शहरी जो है इस पानी वाली टंकी के नीचे अपना तमाम मोहल्ले का और तमाम इलाके का कूड़ा क्रिकेट यहाँ पे फेंक जाते हैं। और उसके साथ साथ अब मुर्दा जानवरों को भी लोगों ने यहीं पे फेंकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इलाका बदबू और ताफुन से भर जाता है। और ये जो कूड़ा क्रिकेट फेंका जा रहा है, इसके साथ ये जो मुल्का दीवार है, ये CEO एजुकेशन मुल्तान की रहाइश गाह है, और उसके साथ साथ दीगर तालीमी इदारे भी इस गली के अंदर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से यहाँ से कूड़ा क्रिकेट उठाने का कोई बाकायदा इंतज़ाम नहीं किया गया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जितने भी मोहल्लों के अंदर कूड़ादान के जो पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पे कूड़ादान होना चाहिए वहाँ पे मौजूद नहीं है। वहाँ पे एक तो कूड़ादान रखे जाएं, और दूसरा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर यहाँ से कूड़ा क्रिकेट उठा के लेके जाए। जी इमरान अरशद, बहुत शुक्रिया आपका। उधर खुशाब की तहसील कायदाबाद में पीने के साफ पानी का हसूल शहरियों के लिए ख्वाब बनता जा रहा है। हुकूमती अदम तवज्जो के बायस शहर भर की वाटर सप्लाई ख़राब हो चुकी है। शहरी पीने के साफ पानी से महरूम है। इसी से मुतल्लिक मज़ीद जानते हैं। राशिद मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। जी राशिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हर शहरी का हक है कि हुकूमत इसे साफ़ पानी मुहैया करे, क्योंकि साफ़ पानी ज़िंदगी का एक बुनियादी जुज़्व है। लेकिन कैदाबाद में सूरत हाल इसके बरअक्स है। यहाँ शहरी पीने के साफ़ पानी से महरूम हैं। कई इलाकों में अरसा दराज से बंद वाटर सप्लाइयों की वजह से इन इलाकों के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। महंगाई के इस दौर में शहरी पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत को भी दूर दराज से महंगे दामों खरीद कर लाने पर मजबूर है। जबकि जो वाटर सप्लाई चल रही है, इसके पाइप इतने खस्ता हाल हो चुके हैं कि सीवरेज का पानी लाइनों में मिक्स होकर शहरियों के घरों में पहुंच रहा है, जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस मसले पर शहरियों की जानिब से आला हुकाम को मुतअद्दिद बार आगाह किए जाने के बावजूद मुतल्लिका अहकाम जो हैं वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि थर पार्कर में असिस्टेंट कमिश्नर मिट्टी का दफ्तर ही गंदे तालाब का मंजर पेश करने लगा है। सीवरेज का गंदा पानी दफ्तर के अहाते में दाखिल हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने अपने दफ्तर के सामने गंदे नाले को बंद नहीं करवाया। मजीद जानेंगे, मरियम सिद्दीका हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, बताइएगा।
जी इस वक्त मैं असिस्टेंट कमिश्नर मिठी के ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये एक रिहायशी इलाका है और यहाँ पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भी यहाँ पर मौजूद है और बराबर में ही मस्जिद भी है, अल्लाह का घर भी यहाँ पर मौजूद है। मगर एक अलमिया ये भी है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो जो हैं एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल भी हैं और उनकी जिम्मेदारी आती है कि शहर की सफाई सुथराई का काम किया जाए, उसके ऊपर तवज्जो दी जाए। मगर उनकी अदम तवज्जो की इससे बड़ी मिसाल क्या मिल सकती है कि इनके अपनी ऑफिस के अंदर 2 दीवार के अंदर जो है सुराख हो चुका है और जो पूरे इलाके का जो पानी है, गंदा पानी, नालियों का पानी जो है वो इनके ऑफिस में जमा हो रहा है और यहाँ पे जो इनकी अपनी रिहाइश भी मौजूद है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतना गंद। मरियम सिद्दीका, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ की खबर पर एक्शन। सादिकाबाद के मेन एंट्री पॉइंट ताज चौक पर बरसों से बंद चबूतरे की ताज़ीन व आराइश शुरू कर दी गई है। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा नियो मोहम्मद शबान से। जी मोहम्मद शबान। जी बिल्कुल, सादिकाबाद के मेन ताज चौक पर जो है वो सादिकाबाद शहर की एंट्री पॉइंट पर बनाया गया चबूतरा जो है वो कई सालों से इसका काम बंद पड़ा था। न्यूज़ ने जैसे ही खबर चलाई तो इस पर इंतजामिया जो है वो हरकत में आई और बंद मनसूबे का काम जो है वो शुरू कर दिया गया। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाया तो ये वो चबूतरा था जो कि मेन एंट्री पॉइंट के ऊपर जो है बनाया गया था। इस वक्त जो है CO साहब यहाँ पे पहुँचे हैं जिसकी निगरानी में काम जो है इसकी तज़ीन और आराइश का शुरू कर दिया गया। CO साहब हमारे साथ मौजूद है, सर बताइएगा ये तज़ीन और आराइश का काम कई सालों से बंद पड़ा था, अब दोबारा इसके ऊपर काम शुरू हो गया, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर सलमान खान के विजन के मुताबिक हमने शहर की तज़ीन और बेहतरी के लिए तज़ीन और आराइश का काम शुरू किया है। इसके ताज चौक का, इसके अलावा भी हमारे प्रोजेक्ट्स हम शुरू कर रहे हैं। रेलवे चौक पे हम एक मॉन्यूमेंट इंस्टॉल कर रहे हैं जो पुराना रेलवे चौक है। उसके अलावा शहर में हम एक अर्बन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं और मियावाकी फॉरेस्ट हम वहाँ पे वो स्टार्ट कर रहे हैं, ये मेन वाटर वर्क्स के ऊपर। इसके अलावा शहर में खूबसूरत लाइटों का भी इजाफा किया जा रहा है। जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स थी वहाँ पे रोप लाइट्स हम ऐड कर रहे हैं। सादिकाबाद की तज़ीन और आराइश के लिए जो है इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया और जल्द ही बहुत अच्छे तरीके से सादिकाबाद के शहरियों का खूबसूरत चबूतरा और खूबसूरत मेन एंट्री पॉइंट यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। सादिकाबाद के शहरियों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाने पर न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा किया कि न्यूज़ ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई और सादिकाबाद की इंतजामी हरकत में और आज ये तज़ीन और आराइश का काम जो है वो शुरू हो चुका है। जी मोहम्मद शबान, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरांवाला में पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम। शहर में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा है। गुज़िश्ता साल 2100 मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं। मज़ीद जानेंगे शफकत इमरान से। जी शफकत। जिस तरह आप जानते हैं कि गुजरांवाला में मोटरसाइकिल थेफ्ट जो है वो उस पर पुलिस बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में CIA की कारकर्दगी के हवाले से बड़ा अहम इंकशाफ हुआ कि 200 से ज़ायद मोटरसाइकिलें जो चोरी थी वो बरामद हुई और तकरीबन 13 करोड़ जो लूटी हुई रकम थी वो शहरियों को वापस की गई। CIA की कारकर्दगी के हवाले से एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें शहरियों ने इसे बहुत ज़्यादा सराहा। मेरे साथ CPO गुजरांवाला मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी, हमने आज 13 करोड़ 42 लाख रुपए की जो माल मसरूका है, 171 गैंग्स हमने जी पकड़े हैं। उनके पौने 491 जो मेंबर्स हैं वो हमने बस्ट किए ये 2 माह के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज 213 मोटरसाइकिलें लोगों को वापस की हैं जी, गाड़ियां वापस की हैं, कारें वापस की हैं, मवेशी वापस किए हैं। जो मोटरसाइकिल चोरी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन पुलिस इस पे दिन रात अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इनकी बात सुन ली कि मोटरसाइकिल चोरी और डकैती एक रूटीन बनती जा रही है। पुलिस इस पे काम भी कर रही है। आज 213 के करीब मोटरसाइकिलें जो हैं वो वापस की गई हैं, नकदी वापस की गई है, जिस पे शहरियों ने पुलिस की तारीफ भी की है। लेकिन उनका कहना है कि इससे ज़्यादा जो है वो काम करने की ज़रूरत है क्योंकि मोटरसाइकिल चोरी और डकैती एक रूटीन बनती जा रही है। जी, आज़ाद कश्मीर में दूसरे रोज़ भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी के बायस वादी लीपा का दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। मज़ीद जानते हैं वकास अहमद से। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त जेलम वेरी के बालाई इलाके वादी लीपा की तरफ जाने वाली आम और वाई शाहराह पर मौजूद हूँ। वादी लीपा जो है वो बालाई इलाका है और कल से जो बर्फबारी का सिलसिला है उसके बाद वादी लीपा का जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है और वादी लीपा को मिलाने वाली जो शाहराह है उस पर 2 से 3 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी है और तमाम आमदोरफ्त के लिए वो इस वक्त बंद है। मैं इस वक्त जो लीपा की तरफ जाने वाली शाहराह है उस पर मौजूद हूँ। इस शाहराह का जो है वो मुकम्मल बर्फबारी के बाद बंद है और इस वक्त भी यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है जिससे मौसम मजीद सर्द हो चुका है। इस वक्त यहाँ पर सर्दी का ये आलम है कि मेरे हाथ जो है वो बिल्कुल सर्दी के बाद से जम चुके हैं और इसके साथ साथ जो मैदानी इलाके हटियाँ बाला चिनारी और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर भी तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। जी।
वकास अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब रावलाकोट में भी वक्फे से बर्फबारी जारी है और बर्फबारी के बायस मुतादिद राबता सड़कें बंद हो गई हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जानेंगे खुरम जुल्फ़िकार से। जी खुरम, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में। रात भर से यहाँ पे बर्फ़बारी और बारिश का सिलसिला जारी है और सर्दी की शिदत में इंतहाई इजाफा हो चुका है। इस वक्त मेरे बैग में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तकरीबन आधा से 1 फुट जो है ना वो बर्फ़ पड़ चुकी है। और अगर बात कीजिए रावलाकोट के जो बालाई इलाके हैं, तोली पीर है, बंजोसा है, लस्टन्ना है और इसी के साथ साथ जो है हुसैन कोट है, वहाँ पर इस वक्त 1 फुट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। वहाँ की जो राब्ता सड़कें हैं वो भी बंद हो चुकी हैं। शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। ज़िला इंतज़ामिया ने जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी है और खास करके जो सियाह यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए हिफाजती इक़दाम। जुल्फ़िकार, बहुत शुक्रिया आपका। शहर ओलिया में मौसम खुशगवार, शहरियों ने छुट्टी को इंजॉय करने के लिए तफरीही मकामात का रुख कर लिया। बच्चे भी तफरीही मकामात पर खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तफसीलात बताएंगे माजिद क्लासरा। जी माजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, संडे का रोज़ है। छुट्टी का मज़ा दोबारा करने के लिए शहरों ने तफरीह मकामात का रुख कर लिया है। शहरी बड़ी तादाद में आ रहे हैं और तफरीह मकामात से जो है वो छुट्टी का मज़ा जो है वो दोबारा कर रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज इतवार का रोज़ था, आप निकले हुए हैं तफरीह मकामात पर, तो कैसा लग रहा है, कैसे गुजरी है छुट्टियाँ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। छुट्टी का जो दिन था, हमने सोचा कि चलो दोस्तों के साथ थोड़ा सा एंजॉयमेंट होनी चाहिए, तो मौसम अच्छा है। आज बड़े दिनों बाद जाके धूप निकली है, हमने चलो जाके मौसम एंजॉय करें, ज़रा धूप एंजॉय करें, तो इसी वजह से आए हुए हैं। कुछ खाया पिया है, क्या कहेंगे? बस जाके खाएंगे अभी। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना था कि आज छुट्टी का रोज़ था, वो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ यहाँ पर निकले हुए हैं। और जो बच्चे की बात करें तो बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, झूले भी ले रहे हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की आइसक्रीम्स हैं वो भी खा रहे हैं। तो उनका कहना था कि आज छुट्टी का रोज़ था और एक ही दिन होता है वीकेंड में हमारे पास, तो हम यहाँ पर तफरीह मकामात पर आते हैं और छुट्टी को खूब इंजॉय करते हैं। जी।